Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with a topic partnership firm. Partnership firm, it's a topic from the drugstore business management or marketing. Okay, in that the unit forms of business organization. Okay, the topic is partnership firm is comes under the private enterprises. Okay, private enterprises, in that the partnership. In earlier my video I explained the one of the example from the private enterprises, that is a sole proprietorship. Sole proprietorship. So in this class we are detailed what are the partnership firm and what are its advantages as well as the disadvantages we are going to discuss. So as the name indicates very clearly, partnership means more than one or not more than 20. Means any business, if you are making a individual with the 1 or 2 or 3 up to 20 members, when you are joined together, investing together and making the knowledge, skill, efforts, everything if you are putting in that business. So together making of any business with more than 2 members we call as the partnership. So that is very simple. In you see that many industries will have the 2 or 3 members or the owner will be there. So that is called as a partnership. Some are the legal documents required, some are the non-legal documents required. So let me define how the partnership firm can be defined. Okay, when a 2 or more than 2 person join together to contribute money, labor or skill, and share the profit and losses among themselves, are individually known as a partners and collectively we call as a partnership firm. I am repeating, when a 2 or more than 2 persons to join together to contribute money, labor, skill, and share the profit and losses among themselves, are individually known as a partners and collectively we call as a partnership. जब कोई दो से ज़्यादा लोग उनका अमाउंट इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उसमें जो नॉलेज रहता है, अपना नॉलेज, अपना आइडियाज़ जो भी डाल के लेबर को ज्वाइन करके हम लोग जो भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. उसमें क्या होता है, जो भी प्रॉफिट रहता है, लॉसेस रहता है, जितने लोग पार्टनर्स रहते हैं वो लोगों को डिवाइड कर लेते हैं. सो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. ओके, एक आदमी को पार्टनर बोलते हैं, सब मिलने के बाद उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the relation between the persons investing for the money into the business when they are sharing with the profit and losses. So that is the another way of definition of the partnership. According to the act which is invented in the 1930, which is nothing but a relationship between each member, and they are investing the money and they are sharing their knowledge, they are sharing their idea and making the equal profit and losses in the particular business. So that is called as the partnership. So let me discuss what are the advantages of partnership firm when comparing with the other types of business firms. So the partnership firm is a very easy to start and it requires minimum 2 or more than 2 like-minded. See the word like-minded, and maybe oral or written agreement can be done, and there is no complicated legal formality. जैसे समझ लीजिए बड़ा सोसाइटी का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा रहता है. यहाँ पे क्या भी नहीं, आपके जो लाइक माइंडेड मतलब जो भी पहचान रहता है, रिलेशन रहता है, दोस्तों रहते हैं, वो सब मिला को जो व्यापार स्टार्ट करते हैं ना, उसको लाइक माइंडेड बोलते हैं. सो वो जो ज़रूरत क्या रहता है, जस्ट नॉर्मली ओरल से एग्रीमेंट कर लेते हैं या तो रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं. जैसे मेजर लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरत नहीं पड़ता. फर्म में बी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932. चंद फर्म क्या रहता है, जैसे पार्टनरशिप रहता है ना, रजिस्टर भी कर सकते हैं, अगर बगैर रजिस्टर भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट,
पार्टनरशिप में भी पूल देयर इनफ फंड्स फॉर द स्मूथ रनिंग। पार्टनरशिप क्या हो जाता है, पार्टनरशिप बनाने से क्या हो जाता है, आपका जो फंड रहता है ना वो बढ़ जाता है। जैसे समझ लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, आपका फंड लिमिटेड रहता है। एक आदमी के पास कितना रहेगा, 1 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा। अगर कोई इंडस्ट्री आप चालू करना बोले तो 10 करोड़ या 50 करोड़ होना बोले तो जबकि टाइम पे पार्टनरशिप बहुत बढ़िया हो जाता है। क्यों बोले तो फंड राइज हो जाता है दोस्तों से साथ, तो आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। Any kind of decision can be taken because partners can meet with a short notice to all the member। यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सा भी डिसीजन लेना बोले तो बहुत ही आसान है, बहुत सरल से आप डिसीजन ले सकते हैं। क्यों बोले तो दो लोग से 20 लोगों के अंदर ही रहता है, सो भी लोग लाइक माइंडेड रहते हैं। अगर कोई मीटिंग करना है, कोई डिसीजन लेना है, क्या तो इम्प्रूव करना है, क्या तो डेवलपमेंट करना है, क्या करना बोले तो एक छोटा नोटिस दे दिया तो सबको एक मीटिंग बना के आपका डिसीजन फास्ट हो जाता है। जैसे समझ लीजिए बड़ा रहता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस रहता है, वहाँ पे कुछ भी डिसीजन लेना बोले तो बहुत ही मुश्किल रहता है। सो वो ये चीज़ यहाँ पे एडवांटेजेस रहता है। सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड अमंग द पार्टनर। जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या हो जाता है, एक ही ओनर एक ही रहता है, उनको खुद मालूम रहता है सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस, कैसा लाना, क्या लाना, क्या प्रॉफिट, कितना रेट में लाना, वो सब सीक्रेसी रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, जितने लोग पार्टनर्स रहते हैं वो लोगों को सब मालूम रहता है बिजनेस क्या चल रहा है, कैसा ला रहे, क्या कर रहे, वो चीज़ सीक्रेसी अमॉन्ग द पार्टनर्स ओनली will be there. So that is another important of the maintaining the secrecy in the partners only. If all the partners taken full interest in the business, so business will be, मतलब जो भी पार्टनर्स रहते हैं, अभी 5 लोग समझ लीजिए पार्टनर्स है, पूरे 5 लोग अपना नॉलेज, आइडियाज़, इंटरेस्ट ज़्यादा लिए तो उसका जो फर्म डेवलपमेंट रहता है बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। अगर और उनका बिजनेस भी बढ़ जाता है, उसका एक दुकान रहे तो 2 दुकान हो जाते हैं, एक इंडस्ट्री रहे तो 10 इंडस्ट्री हो जाता है। जिस तरह से पार्टनरशिप अपना इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं बिजनेस की तरफ, वो बढ़ जाता है, वो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहता है। इन केस ऑफ लॉसेस इन बिजनेस, रिस्क आर शेयर्ड अमंग ऑल। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो जाता है, अगर बिजनेस लॉस हुए तो वो एक ही ओनर रहने से क्या हो जाता है, आदमी क्या पूरा रोड पे आ जाता है। यहाँ पे नहीं रहता है। क्यों बोले तो सभी पार्टनर रहते और जो भी लॉस हो जाता है इक्वली शेयर हो जाता है, तो एक ही आदमी को बर्डन नहीं होता। वो मेजर एडवांटेज रहता है पार्टनरशिप में। टू डिसॉल्व फर्म जस्ट 14 days नोटिस टू ऑल द पार्टनर। अगर चाहिए आपको बिजनेस स्टॉप करना है, डिसॉल्व करना है, क्लोज करना बोले तो एक नोटिस दे दिए तो सबको, कितने लोग हैं आपके पार्टनर्स को, सभी 14 days के अंदर आप दे दिए तो आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता। ये जो है ना important advantages. Let me discuss disadvantages of the partnership firm. यहाँ पे क्या हो जाता है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड मोर देन मीन्स 20 लोग से ज़्यादा लोग आप पार्टनर में नहीं रह सकते। ये अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलते हैं, कौन सा भी पार्टनरशिप फर्म बनाना बोले तो 2 लोग से 20 लोग ही है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। जैसे समझ लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे ये जो रेलवे है वो सब क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रहता, प्राइवेट का यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे पार्टनरशिप मिसअंडरस्टैंडिंग होने में ज़्यादा रहता है। क्यों बोले तो म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं रहते। समझ लीजिए 20 लोग हैं, 20 लोगों का अंडरस्टैंडिंग सही रहे तो आपका बिजनेस अच्छा रहता है, और है तो भी 1 साल 2 साल 10 साल तक रहता है, 10 साल के होने के बाद चेंजेस हो जाता। सो इसलिए पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाता है। सो क्या हो जाता है, लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन टू अमंग द पर्सन्स। इफ़ एनी पार्टनर विड्रॉ इज़ अ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनर रहता है 20 लोगों में, एक लोग निकल गया तो निकलना चाहता है तो एक लोग निकलने से तो क्या हो जाता है, बाकी का लोग क्यों निकले, क्या है, कुछ डाउट आ जाता है। ऐसे चीज़ में क्या हो जाता है, फेथ बहुत कम हो जाता है इनको। Dishonest partner may leak the secrecy of the partnership firm. As I told in the advantages, whatever the secrecy is there among them, they will be contributing each other. So यहाँ पे क्या हो जाता है, 20 लोगों को सीक्रेसी रहता। समझ लीजिए 20 लोग पार्टनर है, 20 लोगों को मालूम रहता है बिजनेस सीक्रेसी। अगर कोई अच्छा आदमी रहता है, बुरा आदमी रहता है, अगर बुरा आदमी रहता है तो उसका जो बिजनेस का सीक्रेसी है दूसरों को बोल देता। इससे क्या हो जाता है, अपना सीक्रेसी का बिजनेस दूसरों को मालूम हो जाता और कंपटीशन बढ़ जाता है। ओके, पब्लिक्स आर लेस इन फेथ
ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। समझ लीजिए पब्लिक बहुत कम फेथ करते हैं, क्यों बोले तो पार्टनरशिप का फर्म भरोसा नहीं रहता, आज रहता है कल बंद हो जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जो है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहता है वहाँ पे, तो इससे लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप में बहुत कम रहते हैं, क्यों बोले तो दुकान आज रहता है कल निकाल देते हैं, तो इंडस्ट्री भी ऐसे ही रहता है। इसलिए ये लोगों को पब्लिक को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखते जैसे पार्टनरशिप फर्म में। ओके, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्टनर जो भी जितने लोग रहते हैं ना, अगर बिजनेस में लॉस आए तो अपना जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है ना वो भी देना पड़ता है। ओके, क्रेडिटर विल नॉट बी सिट सिंपली। सो जो उधार दिया रहते हैं दुकान के लिए या इंडस्ट्री के लिए, वो लोग चुपके नहीं रहते। इसलिए जितने भी पार्टनर रहते हैं ना, वो लोग अपना प्रॉपर्टी अपना कुछ भी बेच के वो पैसा देना पड़ता है। इस तरह से थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस ऑफ ए पार्टनरशिप। मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से पार्टनरशिप फर्म बोले तो क्या, उसका डेफिनेशन क्या, कौन सा एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, उसके अलावा मेजर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म से क्या हो जाता है, मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।